Good evening, sir. Good evening, Aryan. So, how is the condition of rain in your area? सर बहुत हम मुजफ्फरपुर अभी घूम के आए हैं। पानी Hmm. का बहुत बुरा हाल है। एलएस कॉलेज के पास से दवा लाने गए थे Okay. तो सर मिठनपुरा चौक में स्कॉर्पियो तक में पानी घुस रहा है। ये पानी है। Oof, 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 oof. और उससे भी ज्यादा समस्या हुआ है कि ये जो ड्रेनेज जो हर जगह कंस्ट्रक्शन में है और Hmm. आधा रोड बना हुआ है, तो इससे और हालत खराब है। मतलब कुल मिलाकर अब मिठनपुरा, हाँ सर, मिठनपुरा, कलमबाग चौक, उसके बाद क्या क्या है, अघोरिया बाजार, सब डूबा हुआ है। सब डूबा हुआ है। मतलब कयामत जो है इस बार चारों तरफ से है। यस सर, कयामत पूरा है, निकलने वाला नहीं है सर। हम्म। अनटिल बहुत इमरजेंसी ना हो, कुछ नहीं खुला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल शॉप। ओके। लाइट है कि लाइट भी नहीं है? सर लाइट भी नहीं है ओफ। और इन्वर्टर भी खराब है। फिर बड़ी मुश्किल से मोबाइल चार्ज है। हाँ, बड़ी मुश्किल से नहीं, थोड़ा बहुत है जो चल रहा है, रात भर है, चल जाएंगे। अब सुबह फिर इन्वर्टर का कुछ करना होगा। ओके। Okay, so I think today we are going to have only two participants. So Anmol is there and Chef Shankar is there, but not a problem. जो चैलेंजिंग समय है उस समय में बहुत लोगों का आना जुड़ना जो है वो टफ है। आज मैंने अपना एक क्लास कैंसिल भी किया बिकॉज जो बच्चे क्लास में आना था उनके यहाँ ना बिजली थी ना उनका मोबाइल चार्ज था, बारिश हो रही थी, पूरा अंधेरा था, तो फाइनली वो क्लास मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अभी टफ हैं, बट ओके। अगर दो लोग भी आते हैं तो इससे फ़ायदा क्या है कि एटलीस्ट वी विल डिस्कस एंड रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पोस्ट होगी। जो लोग ना आ पाए वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। अनमोल, यू आर देयर? Yes, sir. ओके। आपके नाम में दिखता है अनमोल उप्पल एंड देन इन ब्रैकेट 1 एंड देन पार्ट 3rd। Yes, sir. My roll number is 1. Oh, so when you go for Yes. Zoom session in your college, so this is required. Yes, sir. Roll number and Yes, third sir. Yes. third year. Okay, fine. ठीक है. Okay, so let's start. Like yesterday, like last class, today also we have a very important topic. Fine. So same thing, campus to corporate. I have named it campus to corporate. किस लिए? Because you are in college, and college is having a campus, and from college you are trying to go to a company or for a job. So campus to corporate. And three things which I keep on repeating: attitude, skill, and knowledge. So we have to focus on these three: right attitude, right knowledge we can convert into right skill, and right skill means we are going to have our place in the society, in the job market. Body, mind, soul, we all know our appearance, our knowledge and communication, and our behavior. These three things we have to keep in mind. Now, one thing which I want to start, I don't know, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, but I will try to push it in my each and every class. All of us we should have something called self motivation tip. तो मोटिवेशन आई थिंक हमने कभी पढ़ा होगा या डिस्कस किया होगा कि मोटिवेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है, जब तक सामने वाला कोई है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, आई एम मोटिवेटेड, बट द मोमेंट ही इज नॉट देयर, आई फॉरगॉट हिज सेइंग्स, मैं टच में नहीं हूं, तो स्लोली दैट मोटिवेशन विल गो अवे। फॉर a success, for a long journey of life, self motivation is required. कोई हो ना हो, I can charge myself and I can keep myself motivated without any external support, right?
So I want both of you to think every day in the morning what you can do so that you can motivate yourself. You can do a self motivation. Okay. So first you think, let me know, and then I will tell you my ways how I keep myself motivated myself in the morning. ठीक है. So एक ये point आप लोग थोड़ा इस पे दिमाग लगाएंगे. Now, I also thought of reminding you in every class regarding 5 golden rules, that maybe this is a class of development of personality and other things, but for good communication, these 5 activities on a daily basis is very, very important. Fine. So, इस पे भी आपको focus करना है. And finally, what we have done in the last class was SWOT analysis we have done, and homework was to do a personal SWOT analysis and discuss. And I am so happy that out of so many people, there's only one student who discussed with me, and she is Anmol who discussed. बाकी कुछ लोगों ने बोला कि हमने Sir, कर I लिया है. also made it. मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने उसको जवाब भी दिया ना आपको. हाँ. कि आपने कर लिया तो करके क्या करेंगे आप उसको? जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू एनालाइज कि आपने जो किया है उसमें आपका एक्शन प्लान क्या है, क्या करना है, तब तक वो किसी काम का नहीं है. सो स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन take an appointment and you can discuss with me about SWOT analysis. Now coming to today's topic, conditioning and change. Conditioning and change. We'll try to understand कि इसका मतलब क्या होता है. कंडीशनिंग. तो हम सब ने नाम सुना है शैम्पू के साथ एक चीज हम खरीदते हैं, कंडीशनर. राइट. सो अनमोल विल टेल मी कि शैम्पू का काम तो हमको मालूम है. शैम्पू जो है वो बालों को साफ करता है. व्हाई वी यूज कंडीशनर इन आवर हेयर? Because it provides smoothness to the hair, ओके. and it also gives shining to the hair, so that shampoo of the hair should be long lasting maybe. So this Okay. is the reason why we नहीं, use conditioner. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. सो जो पॉइंट मुझे मेरे काम का जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो शैम्पू ने काम किया है, if I want to make that work long lasting, right, तो वो लॉन्ग लास्टिंग काम करे, जो शैम्पू ने जो काम किया बालों पे वो बहुत लंबे समय तक टिके, इसलिए हम कंडीशनिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. वी यूज कंडीशनर. ठीक है. सो सिमिलरली इन ह्यूमन लाइफ आल्सो वी हैव टू गो थ्रू कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब अगर हिंदी में जाए तो एक बड़ा अच्छा वर्ड है कंडीशनिंग के लिए, अनुकूलन. यानी कि जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, सो दैट कि आप इस परिस्थिति का भी एडवांटेज उठा सकें. एग्जाम्पल के लिए अभी आप सबको मालूम है कि फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स, खासकर फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, 1.5 मंथ, हम बहुत पूरा का पूरा शहर देश जो है बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और पता नहीं ये कितने लंबे समय तक चलने वाला है. वी ऑल्सो डोंट नो दैट. तो इस समय में कंडीशनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस करंट सिनेरियो में अपने आप को ढाल लें, अपने आप को हम अडेप्ट कर लें, सो दैट कितना भी चैलेंज क्यों ना है, हम इस चैलेंजिंग समय में भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो कंडीशनिंग आप समझ गए. कंडीशनिंग का मतलब होता है कि अपने आप को ढाल लेना, ताकि जो माहौल है उस माहौल में ढालने के कारण आपको उस माहौल से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. अगर आप हर दिन बोलते रहेंगे कि भाई जिंदगी तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, कॉलेज नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है, सो वी कीप ऑन सेइंग ऑल दीज थिंग्स, उससे क्या अंतर पड़ता है? कुछ अंतर नहीं पड़ता है. लाइफ जैसी चलनी है वैसी ही चलेगी. जब ठीक होना होगा कुछ महीने के बाद तभी ठीक होगा. तो जरूरी ये है कि हम गुस्सा ना होकर के, खीज ना करके, हम अपने आप को थोड़ा सा कंडीशनिंग करके चेंज करने का प्रयास करें. सो कंडीशनिंग एंड चेंज, अपने को हम अनुकूल करें जो माहौल चल रहा है, और अनुकूल करने के बाद उससे मैच करने के लिए जहां जहां भी हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में, हमारे एक्टिविटीज में चेंज करने की आवश्यकता है, हम चेंज करें. तो मेरे ख्याल से अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा. कंडीशनिंग एंड चेंज का मतलब कभी भी हर उम्र के हर मुकाम पे आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ
कंडीशनिंग करना है, अपने को उस माहौल के हिसाब से ढालना है, और उस ढालने के लिए जो कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस आपको करना है, राइट। सो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब आप क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में थे, तो आपकी इस दुनिया की समझ, इस दुनिया के साथ आपका जो इंटरेक्शन था वो अलग था। फिर आप 1 to 5 में आए, आपका इंटरेक्शन चेंज हुआ। 6 to 8 में आए, वापस चेंज हुआ। 9 to 12 में आए, वापस चेंज हुआ। अब आप कॉलेज में हैं, आप वापस चेंज हुआ। जैसा आप बिहेव कर रहे थे विथ योर फैमिली मेंबर्स, विद दिस सोसाइटी, विद दिस वर्ल्ड इन 1 to 5, वैसा बिहेव आप नहीं कर रहे हैं। सो वी कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम इस उम्र में वैसा बिहेवियर करेंगे तो हम बहुत ही अजीब से लगेंगे, राइट। सो ये कंडीशनिंग एंड चेंज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब जरा समझते हैं कि कंडीशनिंग हमने समझ लिया, सेल्फ कंडीशनिंग। अब ये कंडीशनिंग कौन करेगा? तो बचपन में तो कंडीशनिंग कौन करता है? जनरली मॉम एंड डैड। अगर कोई बड़ा भाई बहन है या घर के जो बड़े लोग हैं, दे डू कंडीशनिंग, या टीचर्स कंडीशनिंग करते हैं हमारी। लेकिन एक एज है, सो मैं बोलूंगा कि 12th पास करने के बाद, मैं हमेशा 12th पास पर बहुत जोर देता हूँ, बिकॉज 12th पास करने के बाद यू बिकम मैच्योर, आप वोटिंग कर सकते हैं, यू आर 18 प्लस, राइट, यू आर एन एडल्ट नाउ। सो अब कॉलेज में आने के बाद, सो आफ्टर 12th यू शुड गो फॉर सेल्फ कंडीशनिंग, राइट। सेल्फ कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, कब क्या चेंज करना है, कब कैसे मुझे सिचुएशन के हिसाब से अपने को अडेप्ट करवाना है, अपने को थोड़ा सा मोल्ड करना है, वो डिसीजन मैं लेने वाला हूँ। अब मैं हर बात के लिए आई विल नॉट गो टू समवन टू आस्क कि मैं ऐसा करूं क्या, ऐसा करूं क्या, ऐसा करूं क्या, नहीं। अब धीरे धीरे, बिकॉज नाउ आई एम 18 प्लस, आई एम इन कॉलेज, थोड़ा सा मैच्योरिटी आई है मेरे अंदर में, तो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सेल्फ कंडीशनिंग। खुद के डिसीजंस लेने हमको शुरू करने चाहिए। जहां डाउट आया वहां पे पक्का आई विल टेक सपोर्ट, बट हर पॉइंट के लिए, हर छोटी मोटी बात के लिए आई विल नॉट गो टू समवन, आई विल गो फॉर सेल्फ कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग के हिसाब से चेंज। सो कंडीशनिंग का मतलब हुआ कि मैंने अपने आप को ढालने का प्रयास किया, देखा कि मेरे करंट एक्टिविटीज में, और मुझे इसके हिसाब से अपने को ढालने के लिए क्या चेंज करना है, क्या गैप है, और कहाँ-कहाँ मुझे अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, और तब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। सो बोथ आर हैंड टू हैंड। पहले हम कंडीशनिंग पे काम करेंगे और उसके बाद हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। कंडीशनिंग हम समझते हैं कि कंडीशनिंग इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स, जब आप छोटे थे, फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, जो हमारा पहले का समय है, स्कूल का समय था, उस समय हमारी कंडीशनिंग हमारे बड़े करते थे और उसमें कोई हार्म नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि टिल 18 years of age, everyone should go to mom and dad for any support, for any you can say suggestion, right, for any advice। आपको जाना चाहिए, you should ask teachers also, ठीक है। तो फॉर्मेटिव ईयर्स में हम हमेशा अपने बड़ों पे डिपेंड रहते हैं, अपने आप को कंडीशनिंग करने के लिए, चेंज करने के लिए। जो बच्चे भी लॉकडाउन में घर पे होंगे, उनको कोई दिक्कत अगर आती होगी तो वो जाके बोलते होंगे मम्मी से कि मम्मी मुझे ये दिक्कत हो रही है, प्लीज सॉल्व इट, राइट। लेकिन क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद मैं इससे कहा आपको कि धीरे धीरे कंडीशनिंग का जो काम है वो आपको खुद करना चाहिए। तभी आपके अंदर जो बोलते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की भावना जो है वो डेवलप होगी। आपको लगेगा कि नहीं, नाउ आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन टेक माई डिसीजंस माई सेल्फ, ठीक है। मेरे पास इतनी समझ है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, राइट। और कंडीशनिंग भी जो है वो सो एक्सटर्नल कंडीशनिंग होता है हमारे कब, फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब कोई बाहर से हमें कंडीशनिंग कर रहा है। मम्मी ने कहा कि अब ऐसे ड्रेस मत पहनो, घर से बाहर इस समय, इस वक्त के बाद घर से बाहर मत जाओ, इन लोगों से बातचीत मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसे मत लेटो, ऐसे मत बैठो। तो ये जितने भी चीजें इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब क्या है, ये सब कंडीशनिंग है। और आपने ये गौर किया होगा कि आप बहुत बार आप सोचते होंगे कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, कल तक तो कुछ अलग मम्मी बोल रही थी, आज से कुछ अलग बोल रही है, कल तक ऐसा बोलती थी, आज ऐसा बोलती है। तो वो सब कंडीशनिंग है, एंड दैट वाज एक्सटर्नल कंडीशनिंग, राइट। और कंडीशनिंग का मोड क्या क्या है, मोड मतलब किन किन तरीकों से कंडीशनिंग हमारी
होती थी या हो रही है या आगे भी होगी। तो एक तो होता है कि कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लाइक मॉम एंड डैड दे गिव इंस्ट्रक्शंस, वो एक कंडीशनिंग का एक तरीका है। बहुत बार हम खुद ऑब्जर्व भी करते हैं, हम अपने बड़े भाई को या बड़ी बहन को या अपने कॉलेज के के सीनियर्स को देख करके या समाज के और बड़े लोगों को देख करके हम खुद भी समझते हैं कि हमें अपने अंदर क्या चेंज करने की आवश्यकता है, और ये दिमाग का आना बहुत आवश्यक है ना। आई वाज डिस्कसिंग विद समवन अबाउट बिजनेस एटिकेट, एक चैप्टर है जो पढ़ना है, बिजनेस एटिकेट, यानी कि जब हम जाएंगे किसी कंपनी में तो हमें किस तरह बिहेव करना है। तो आई वाज टेलिंग कि ये मैक्सिमम चीजें जो हैं, मतलब हमें कैसे बिहेव करना है, ऑफिस में कैसे बिहेव करना है, घर पे कैसे करना है, किसी के यहाँ जाएंगे तो कैसे बिहेव करना है, ये ज्यादा का ज्यादा जो है ना, ये सब का सब ऑब्जर्व करके हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। कोई हमें टोकेगा, उससे अच्छा है कि हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं, अब आपको ऐसा करना चाहिए, अब आपको ऐसा करना चाहिए। तो शैम्पू एंड कंडीशनर से समझ लिया हमने कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम लॉन्ग लास्टिंग हो, इसके लिए कंडीशनिंग की आवश्यकता है। तो वैसे ही हमारे उम्र के हर मोड़ पे जो हम काम कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे सके, इसलिए कंडीशनिंग की आवश्यकता है। कंडीशनिंग हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में हमारे बड़े करते हैं, और वो सारे कंडीशनिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंडीशनिंग, बिकॉज कोई बाहर से हमें पुश कर रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इट टर्न्स टू इंटरनल कंडीशनिंग होना शुरू होता है। और मोड ऑफ कंडीशनिंग क्या है? किसी की बातों को सुन करके, ऑब्जर्व करके, बहुत बार किताबें पढ़ करके, पिक्चर देख करके, राइट, अखबार पढ़ के, तो हम हर मोड से कुछ ना कुछ कंडीशनिंग हम अपने अंदर करते रहते हैं। तो ये हो गया कंडीशनिंग का डिटेल्स। अब कुछ सवाल हमारे सामने हमेशा आते थे कि लोग बोलते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, राइट, बी लाइक योर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। देखो तुम्हारी दीदी कितनी अच्छी है, वैसी बनो, भाई कितना अच्छा है, वैसा बनो, वो कितना पढ़ता है, तुम भी पढ़ो, राइट। तुम वैसे क्यों नहीं हो सकते, तुम्हारे अंदर ये चेंज क्यों नहीं आ सकता? ओके, हम अपने समय में ऐसा करते थे, हमारे समय में चीजें ऐसी होती थी, ठीक है। तो ये सारे सवाल, मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे बातें आप लोगों ने अपने लाइफ में सुनी भी होंगी, और हो सकता है कि अगर आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं तो अभी भी आप सुन रहे होंगे, ठीक है। और ये आप कब कब तक सुनते रहेंगे? आप तब तक सुनते रहेंगे जब तक कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। मैं हमेशा ही बोलता हूँ इस बार, इंडिपेंडेंट नहीं होते, और बहुत बार तो अगर आप और ज्यादा फॉर्चुनेट हैं तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आप सुनते रहेंगे, और इसमें कहीं कोई Yes, sir. और इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा व्यक्ति वो है जो कभी भी फीडबैक, सजेशन को रोकता नहीं है। वो सुनता है, वो सुनता सबकी है, लेकिन अंत में उसे करना क्या है, ये डिसीजन उसके हाथ में होता है। वो कभी आर्गुमेंट नहीं करता है, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सुनता है, करता अपने मन की है, जो उसको अच्छा लगता है, बिकॉज़ नाउ मैच्योर है, उसको मालूम है क्या सही क्या गलत है। और जब कोई पूछता है कि अरे तुमको मैंने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? अरे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी दिमाग में ऐसा आ गया तो मैंने ऐसा कर दिया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अगर लगता है कि अगर मैं उसके बहस में उतरूँ, तो एक आर्गुमेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें करके उसको टाल देता है, क्योंकि उसको मालूम है, उस आर्गुमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। फाइन, तो ये सारे जो सवाल थे, डोंट डू दैट, बी लाइक दिस, व्हाई कांट यू बी लाइक, वी ऑलवेज डू इट दिस वे, इससे क्या हुआ? हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा एक्शन इम्पैक्ट हुआ। हमने अगर बार-बार सुना, तो हमें लगा कि नहीं-नहीं, इतनी बार बोल रहे हैं मम्मी, तो ये सही होगा। फाइन। तो हम बचपन से लेकर के आज तक हम कंडीशनिंग और चेंज का शिकार बनते आए हैं। मैक्सिमम टाइम में वो अच्छा ही होता है, राइट? अब बात हो रही है कि नाउ वी आर यंग एडल्ट। मैं अभी भी इसमें 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक एडल्ट, एक यंग एडल्ट। यंग एडल्ट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप खुद की अर्निंग शुरू नहीं करते, जब तक आप खुद की लाइफ शुरू नहीं करते, तब तक आई कॉल यू यंग एडल्ट। तो आप एडल्ट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अभी आपको थोड़ा-सा और वक़्त लगने वाला है। तो यंग एडल्ट में क्या है, अब टाइम है किस चीज़ के लिए? सेल्फ कंडीशनिंग के लिए। और सेल्फ कंडीशनिंग के लिए ये पहली जो 2 चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है।
है ना? जब भी आपको कोई तकलीफ हो, आपको दुख हो कि लोग ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हाँ, मतलब मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई गॉट स्टक। तो हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, अगर आपको ज़िंदगी में टॉप पर जाना है, अगर आपको समाज को मैक्सिमम लाभ पहुँचाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को लाइक नहीं करते, अपने आप को आप लव नहीं करते, अपने आप को आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते आप। सबसे पहली बात है कि आपको मानना पड़ेगा कि भाई मेरा जो एक पर्सनैलिटी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे में कमियाँ हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कमियाँ हमारे में नहीं हैं, हमारे में कमियाँ बिल्कुल हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उन कमियों पे मैं काम कर रहा हूँ, उस कमियों को मैं दूर कर पाऊँगा और मैं बहुत जल्दी उस अपने एक्शन से मैं एक अच्छा रिसोर्स अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बनने वाला हूँ। सो यू हैव टू लव योरसेल्फ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड आई एम अ विनर। विनर का वापस कोई परिभाषा नहीं है कि भाई मैं वो अनमोल अपने थर्ड थर्ड ईयर में है, वो टॉप करेगी तो विनर बन जाएगी, सेकंड करेगी तो बनेगी, वो बिल्कुल भी नहीं है। विनर की परिभाषा अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो विनर की परिभाषा ये है कि अगर आपने 24 घंटे काम किया, मतलब 24 घंटे मतलब बोलने का मतलब सोने के अलावा जो भी आपका समय है, मतलब कंप्लीट 24 आवर्स आपने स्पेंड किया एंड नाइट यू आर गोइंग गोइंग टू स्लीप। सोने के पहले एक मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ट्राई टू रिकॉल कि मैंने सुबह से लेकर के रात तक आज क्या काम किया। और रिकॉल करने के बाद अगर आपको लगता है कि टुडे आई हैव डन गुड वर्क, मैंने अच्छा काम किया, मैंने अपने को डेवलप करने का प्रयास किया, मैंने अपने को अपने गोल की तरफ ले जाने का प्रयास किया, आज मेरे कारण किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आज मेरे कारण किसी को कुछ सपोर्ट मिला, किसी को फायदा हुआ, यू आर अ विनर। आप एक विनर हैं। अब आपने पैसा कितना कमाया, कितनी आपने गाड़ियाँ खरीद ली और कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, वो विनर का परिभाषा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। विनर की परिभाषा यही है कि आपके कारण समाज के कितने लोगों को सपोर्ट मिला। अब सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये आप सबका अलग-अलग तरीका हो सकता है। आपके पास पैसा है, यू कैन हेल्प थ्रू मनी। किसी के पास कुछ और रिसोर्स है, वो उससे हेल्प कर सकता है। किसी के पास मतलब जिसके पास जो चीज़ है ईज़िली अवेलेबल, आपको उस मोड से सपोर्ट करना चाहिए, फाइन। और अगर आप ये काम कर रहे हैं, हर दिन सपोर्ट कर रहे हैं, हर दिन किसी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, यू आर अ विनर। सो 2 चीज़ें हो गई, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम अ विनर। मैं हमेशा पॉजिटिव कामों में लगा हुआ हूँ एंड देन आई डेवलप माई बॉडी एवरी डे, आई डेवलप माई माइंड एवरी डे, आई डेवलप माई सोल एवरी डे। तो एज एन यंग एडल्ट आपको सेल्फ कंडीशनिंग करनी है और सेल्फ कंडीशनिंग करने के लिए ये जो 3 4 5 मैंने सेंटेंसेस लिखी हैं, ये आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। क्या आज मैंने अपने अपीयरेंस को ठीक करने के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने नॉलेज एंड कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए कुछ किया? फाइन। तो ये हमारा हो गया सेल्फ कंडीशनिंग। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पास्ट कंडीशनिंग कांट बी चेंज्ड। बहुत बार हमको बहुत दुख होता है कि अरे यार, ये काम जो मैं अभी समझ में आया, ये अगर 2 साल पहले किया होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। अब उस पे बहुत मतलब बात करके और सोच करके पछता के फायदा ही नहीं है। 1 सेकंड पहले का जो समय बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, खत्म हो गया, चला गया वो। सो पास्ट कंडीशनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। हमने पास्ट में क्या गलतियां की, कहाँ-कहाँ अपने को चेंज नहीं किया, कहाँ-कहाँ मेरा दिमाग ब्लॉक में था, वो छोड़ दो। बट अ डिसीजन राइट नाउ कैन इंप्रूव योर पर्सनालिटी बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर आपने अभी अभी आने वाले अगले सेकंड में कोई फैसला आपने ले लिया, अपने अंदर कुछ चेंज करने का, राइट? अपने को किसी और तरीके से डेवलप करने का, आगे बढ़ने का, वो आपको कहाँ लेकर के जाएगा, आपके अंदर क्या चेंज लेके आ जाएगा, आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हम जो जो बोले ना, वो जो बीत गया उस पे मिट्टी डालो, खत्म हो गया काम। उस पे अब मैंने 2 साल पहले क्या नहीं किया, 5 साल पहले क्या नहीं किया, उस पे क्यों दिमाग लगाऊँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ? कैसे अपने आस-पास के लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ? वहाँ फ़ोकस करना
बहुत जरूरी है। फाइन, ओके। नाउ अब आपको एक समराइज करता हूं। तो हमने समझ लिया कि कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ, हर बीतते समय के साथ, हर परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढालना इज कंडीशनिंग। ढालना मतलब क्या, पहले तो हम ढालते हैं अपने दिमाग में करना क्या है, ढालने के बाद दिमाग में जब उसके हिसाब से हम अपने लाइफ को, अपने एक्टिविटीज को, अपने रूटीन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, दैट इज चेंज। सो कंडीशनिंग का मतलब सोचना कैसे मुझे अपने आप को मैच करना है करंट सिनेरियो से, और उसको मैच करने की जो हमको एक्शंस करने हैं, दैट इज माय चेंज। ये कंडीशनिंग एंड चेंज है। पहले हमारी कंडीशनिंग जो हमारे बड़े थे घर के वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 18 प्लस, आफ्टर पासिंग 12th, हमको सेल्फ कंडीशनिंग मोड में चले जाना है। और सेल्फ कंडीशनिंग मोड में जाने के लिए आई हैव टू आस्क माई सेल्फ ऑल दोज क्वेश्चंस। पहला तो कि मुझे अपने आप से प्यार है कि नहीं है, क्या मैं अपने आप को एज ए विनर देखता हूं कि नहीं देखता हूं, और क्या मैं हर दिन अपने बॉडी माइंड सोल के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। फाइन, अगर ये 4-5 क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछ लेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे एंड यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। सो ह्यूमन बॉडी चेंजेस एवरी माइक्रोसेकंड। जो भी लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि हमारी जो बॉडी है वो हर माइक्रोसेकंड में चेंज करती है। चेंज क्यों करते बोलते हैं, बिकॉज हमारे सेल्स चेंज कर रहे हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहा है, शायद स्किन का कलर चेंज कर रहा है, हड्डियां कहीं इधर उधर जा रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हमारे बॉडी में चल रहा है। और हमारे माइंड का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप पाएंगे, ये जान करके मैंने ये स्लाइड डाला है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा दिमाग चेंज नहीं करता है, हम बड़े होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे बचपन की कंडीशनिंग थी उसी कंडीशनिंग पे, उसी माइंडसेट पे हम काम करते रहते हैं। जैसे कि सपोज अगर बच्चे को बचपन में सपोज ऐसे जगह पे उसकी परवरिश हुई जहां पर किसी की हेल्प करने का रिवाज नहीं था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा एक जनरल बात बता रहा हूं कि सपोज मेरे घर में मैंने बचपन में देखा कि भाई घर में किसी ने किसी की हेल्प नहीं की, मतलब कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसको किसी तरीके से सपोर्ट करने का सिस्टम मैंने नहीं देखा। तो क्या होता है, जब ऐसे लोग बड़े होते हैं, दे बिकम एडल्ट, तो उनके अंदर भी वो भावना नहीं आती है, राइट। लेकिन अगर कहीं भी आपके दिमाग में आया कि अरे मेरा वो दोस्त ऐसा काम करता है, ऐसा काम मैं क्यों नहीं करता हूँ, और तब मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, वो काम करना भी जरूरी है। पता नहीं अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया। तो मैंने क्या किया, फटाक से कंडीशनिंग करके अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया और मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे अभी तक नहीं किया, आप क्या करेंगे। नहीं, अगर आपकी लाइफ का वन डे भी बैलेंस है और आपने अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज कर दिया, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि अभी तक नहीं किया, आप छोड़ो ना, आप क्या करेंगे। कोई भी अच्छी बात दिमाग में आई जो मुझे लगा कि नहीं, ये काम करना एक ह्यूमन के लिए, फॉर बीइंग अ ह्यूमन दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट, ये काम करना चाहिए, आप वो काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि माइंड का चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी बॉडी चेंज कर रही है, हमारे माइंड का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। और हमें मेंटल ब्लॉक्स, बचपन में क्या होता है, हमारे पास मेंटल ब्लॉक्स आते हैं। छोटे होते हैं ना, तो माँ बोलती है कि तुम यहाँ से जंप नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ से बाहर जाके मार्केट से तुम सामान नहीं खरीद पाओगे, तुम ये रोड क्रॉस नहीं कर पाओगे, तुम अकेले गाड़ी पे नहीं चढ़ पाओगे, है ना। तो बहुत बार हमको लोग क्या करते हैं, दे लिमिट अस, तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो आप पाएंगे, अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स होंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये हमारे धर्म में नहीं है, ये हमारे समाज में नहीं है। एक सफल व्यक्ति, एक रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति वो है जो कि इन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ता है। एक फटाक से एग्जांपल दिमाग में आ गया, राजा राम मोहन राय, उनकी भाभी को उनकी आंखों के सामने सती प्रथा वाले इसमें डाला गया, उनके सामने जो उसको बैठाया गया, चिता में बैठाया गया, जला दिया गया। एंड राजा राम मोहन राय को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया।
अभी तक वो सुनते आए थे, फर्स्ट टाइम ही सॉ इट विथ हिज नेकेड आइज, बहुत परेशान हुए, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन लोगों ने उनको पकड़ लिया और वो अपनी भाभी को नहीं बचा पाए, राइट? तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम कुछ देख रहे हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, वो हो गई, हम उसको स्टॉप नहीं कर पाए बिकॉज घर के लोगों ने रोक दिया, समाज ने रोक दिया, फाइन। तो ये हमारा एक मेंटल ब्लॉक है कि ये ऐसे ही होगा, इसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप अपने तरीके से उसके अगेंस्ट आप काम करना शुरू करेंगे, आप लोगों को कन्विंस करना शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूं, जो अभी तक मैं मेंटल ब्लॉक में था उससे मैं तो बाहर निकलूं और लोगों को भी बाहर निकालने का प्रयास करूं। अगर मेरे प्रयास से 5 लोग भी उससे बाहर निकल आए तो अच्छी बात है। तो वैसे राजा राम मोहन राय ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में ही वन, एंड ये उन्हीं का श्रेय है कि वो एक बहुत ही बेकार प्रथा जो है वो समाप्त हुई। सो हमको अपने आप से ये बार बार चेक करते रहना है, पूछते रहना है कि क्या हमारे दिमाग में तो कुछ मेंटल ब्लॉक नहीं है। अगर मेंटल ब्लॉक है तो पहले तो मैं उससे बाहर निकलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने निकलने के बाद मैं 2 3 4 5 6 7 लोगों को कन्विंस करना शुरू करूं कि भाई ये मेंटल ब्लॉक है, ये सही नहीं है, ये हमारे डेवलपमेंट के खिलाफ है, हमको रोक रहा है, राइट? तो ये हमारी हो गई बात। तो ये सब कंडीशनिंग है, ये एज के साथ, समय के साथ चेंज करता है, फाइन। तो अगर आपकी बॉडी ग्रोइंग है और माइंड स्टैग्नेंट है, यानी कि माइंड स्थिर है, माइंड अपना एक जगह पे आकर के नहीं ये लाइफ ऐसी चलनी है, ये कभी नहीं होगा। अगर बॉडी ग्रो कर रहा है, समय चेंज कर रहा है, तो हमारे माइंड को भी चेंज करना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट मैंने डाला है कि इफ अ बोट इज लीकिंग, फिक्स द लीक, डोंट एम्प्टी द रिवर, है ना? अगर नाव में छेद है तो हमें उस छेद को बंद करना पड़ेगा, हम नदी को खाली नहीं कर सकते। तो वैसे ही पता नहीं, मैंने शायद पहले भी कभी ये एक स्टेटमेंट बताया होगा आप लोगों को कि हमें अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक को बदलना है। और वो एक कौन है? कौन बताएगा मुझे? मुझे इस पूरी लाइफ में सिर्फ एक को बदलना है। एंड हु इज दैट पर्सन? किसको बदलना है? सेल्फ। खुद को। हाँ अनमोल, सेल्फ। सही बोल रहा है आर्यन, यस सर। है ना? तो ये एक यस सर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमें कुछ नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। अब आप बोलेंगे कि सर अपने आप को तो बदल लिया, फिर समाज कैसे बदलेगा? तो जैसे ही आप अपने आप को बदलेंगे और आप उस तरीके से एक्शंस करना शुरू करेंगे, आपके थॉट को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके लोग आपकी, भी बदलेंगे। यस, तो मैं शायद अगर सिर्फ ज्ञान बांटूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जब लोग मुझे वो काम करते हुए देखेंगे, लोग मेरे रूटीन को देखेंगे, मेरे काम करने के ढंग को देखेंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, मुझे ऑब्जर्व करेंगे, तो लोग फिर अपने आप चेंज करेंगे, फाइन। तो हमेशा आप अपने आप को चेंज करते रहिए। लोग क्या करते हैं, नहीं मैं अपने आप को चेंज कर लिया और जो मैं चेंज कर लिया उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो मुझसे कोई पूछता है कि ये कैसे करूं, तो आई टेल भाई मेरे इस काम को ऐसे करने के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने अपने को चेंज क्यों किया हुआ है। और अगर आपके थॉट्स में, अगर आपकी बातों में दम है, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और चेंज करेंगे ही करेंगे, राइट? तो ये आपका कंडीशनिंग और चेंज था। सो मैं इसमें 2 चीजें मैं आज डाल रहा हूँ। एक तो ये डाल रहा हूँ कि पहले अभी आपको अपनी कंडीशनिंग चेक करनी, सॉरी, कि मेरी कंडीशनिंग कैसी है, क्या-क्या थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा है। और ये बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो जब-जब आपको मौका मिलता है, हर एक सिचुएशन में आप चेक कीजिए कि व्हाट कंडीशनिंग आई एम हैविंग, व्हाट ब्लॉक्स आई एम हैविंग, और मुझे कहाँ-कहाँ अपने लाइफ में, अपने थॉट में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में चेंज लाना है, राइट? और ये आपका दोनों साथ-साथ चलेगा। आप बड़े भी होते रहेंगे और वो चेंज भी होता रहेगा। और ये बात एकदम आप गांठ बांध लीजिए कि सुनना सबकी है, लेकिन करना वही है जो आपका दिमाग आपको बोलता है कि आप सही है। ये बात अगर मैं अभी मेरे साथ में अगर
क्लास 1 to 6 के बच्चे होते या क्लास 1 to 12 के बच्चे भी होते, तो मैं उनको ये बात नहीं बोलता। मैं उनको बोलता कि देखो, चुपचाप से जो मम्मी बोलती है, जो पापा बोलते हैं, वही सुनना है, वही करना है। बट नाउ बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव पास्ड योर 12th, आप कॉलेज लाइन में हैं, तो मेरा बोलना है कि सुनना सबकी है, लेकिन अंत में आपको जज करना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत। एंड विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी फाइट, विथ अ वेरी नाइस हम्बल डिस्कशन, आपको अपनी बातों को सामने रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? सो आज का जो हमारा होमवर्क है वो ये है कि आपका प्लान क्या है सेल्फ कंडीशनिंग का और चेंज का। आप थोड़ा सा एक हाफ एन आवर का समय निकालिए, आज कल जब भी पॉसिबल है, संडे का दिन आपका आ रहा है, और बैठ करके आप सोचिए कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कंडीशनिंग करने की आवश्यकता है, कौन कौन से ऐसे थॉट प्रोसेस मेरे हैं जो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, वो मेरे ग्रोथ को लेकर के, मेरे डेवलपमेंट को लेकर के वो एक रोड ब्लॉक है मेरे लिए, मेंटल ब्लॉक है मेरे लिए। और चाहे वो साइकोलॉजिकल है, यानी कि दिमाग में है, या कोई फिजिकल है जो मेरे बॉडी में है, मेरे एक्शंस में है, उस दोनों को आपको चेंज करने का प्रयास करना है। अगर कोई ऐसा आपके पास कंफ्यूजन है, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है, बट ऐसा थॉट प्रोसेस मेरे आसपास नहीं है, एंड आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैं सही हूं या वो सही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं उस पॉइंट पे। आई विल नॉट टेल यू कि कौन सही है कौन गलत है, बट आई विल गिव यू माई व्यूज कि मेरा व्यूज उस पर कैसा है। फाइनली डिसाइड किसको करना है, आपको करना है, बिकॉज लाइफ आपकी है, थॉट प्रोसेस आपका है। ठीक है? जो चीज मेरे लिए सही है वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है, जो आपके लिए रॉन्ग है वो मेरे लिए सही हो सकता है। अंत में हमको और आपको डिस्कस करके, ऑब्जर्व करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए बेस्ट कंडीशनिंग क्या है, मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या है, और मेरे लिए लाइफ को जीने के क्या मायने हैं, क्या तरीके हैं, क्या उसकी परिभाषा है। ठीक है? हम सब के लाइफ का पर्पस भी अलग अलग है। सो ये था आपका कंडीशनिंग एंड चेंज, कि हमको समय के साथ, एज के साथ अपने आप को कंडीशन करना है, जो हमारा सिचुएशन है उसके साथ अडेप्ट करना है, और उसके हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस में, अपने एक्शंस में चेंज लाना है। सो प्लीज बोथ ऑफ यू वर्क ऑन सेल्फ कंडीशनिंग। अपने आप से आपको बातें करनी होंगी, पूछना होगा सवाल आपको, एंड व्हेनेवर यू आर रेडी विद दैट, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ मी कि आपने कहाँ कहाँ चेंज करने का प्लान किया है, कहाँ कहाँ कंडीशनिंग करने का प्लान किया है, कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज्ड हैं। वी कैन डिस्कस एंड वी कैन कम टू सम कंक्लूजन, राइट? Yes, sir. तो अनमोल का तो एक ही पेंडिंग है, आर्यन का 2 पेंडिंग हो चुका है, पहला स्वॉट भी पेंडिंग है। यस सर। ठीक है, तो आप अपना काम खत्म कीजिए, यू टेक अपॉइंटमेंट। रिमिस इंडिया के साथ साथ आप इस पे भी काम करना शुरू कीजिए। यस सर। ठीक है, सो अभी किसी के पास Thank कुछ you, sir. सवाल अगर रहेगा तो आप अपने सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, एंड जब हम करेक्ट होंगे डिस्कस करने के लिए, दैट टाइम आई विल टेक द क्वेश्चंस, राइट? Okay, sir. चलिए, Okay, sir. थैंक बाय यू बाय, सर। गुड डे, टेक केयर, ओके, Bye, गुड डे sir. सर। बाय बाय।